Hello, Alefia. I think you'll get your answer here. You have asked about three branches of phonetics, right? And whether they belong to phonetics or phonology. So, in other words, I think you're asking for the difference between phonetics and phonology. So, I'm trying to answer your question. And if you have, then you have any query, please ask me. Here, first, understand the difference between phonology and phonetics. Phonology and phonetics are the two essential parts of linguistic competence. Means you have to understand competence means you have to have very good knowledge about a language. What is language? Again, in first unit, there was confusion between characteristics of languages and scope of language, right? So what are the characteristics means symbols, right? Grammar, words, these are the characteristics means the what is called language, in other words, that is the then you have to characterize the language. कहते हैं ना कि भाई भाषा किसको कहते हैं, तो आपने कहा अरे जिसमें लेटर्स होते हैं, जिसमें वर्ड्स होते हैं, जिसमें ग्रामर होती है, जो बोला भी जाता है, जो सुना भी जाता है, जिससे आप बहुत सारा क्रिएशन कर सकते हो, इनोवेशन कर सकते हो सिर्फ 26 लेटर से, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स. तो यहाँ पर भी याद रखिए कि ये जो है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस मीन्स यू हैव टू हैव वेरी गुड नॉलेज अबाउट language, that is, so there are two essential parts of linguistic competence. Means if you are very much competent in language, means you must have very good knowledge about phonetics and phonology. What is this? While both are related to the production and perception processes of language sounds, they differ in their approaches and goals. Listen, what in other line, what is while both are related to the production and perception means phonetics and phonology are related to production of sound, creation of sound. I'm speaking, that is the production of sound. You are listening, you are trying to understand me, that is perception. So that प्रोडक्शन एंड परसेप्शन, मैं क्या बोल रही हूँ, आप लैंग्वेज मेरी अपनी, आप सेम कॉन्सेप्ट इफ़ यू आर explaining to someone else, so that definitely your production of sound will be different, क्योंकि आप इंडिविजुअल हैं, आपका साउंड, आपका वॉइस डिफरेंट, बट हम कैसे सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं. Again, I'm repeating because I had given example in the class also, that for one topic, four real sisters are sitting, and then and in they all are studying in one class, but then their formation of sentence will be different 100%. एक जैसा चार बहनें हैं, वो कभी भी एक टॉपिक पे एक जैसा सेंटेंस नहीं बनाएंगी, जबकि वो एक ही घर से आती है, एक साथ पढ़ती है, एक ही एटमॉस्फेयर, ऑलमोस्ट सेम एक्सपोजर है, बट दे आर इंडिविजुअल एंटिटी. तो सिमिलरली, तो देयर इज लॉट ऑफ स्कोप इन इनोवेशन एंड क्रिएशन. तो ये दैट इज प्रोडक्शन, कि आप साउंड कैसा प्रोडक्ट, आप बोलते कैसे हो, आप लिखते कैसे हो, आप सेंटेंस फॉर्म कैसे करते हो, दैट इज प्रोडक्शन. परसेप्शन, वो चारों ही सिस्टर्स बैठी है एक ही क्लास में, लेकिन सबका स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है, सबका वोकैब अलग है, सबका नॉलेज अलग है, सबकी थिंकिंग प्रोसेस अलग है, सबका माइंडसेट अलग है, दैट इज़. तो अकॉर्डिंग टू ऑल दीज एलिमेंट्स दे वुड अंडरस्टैंड द लिसनर. तो सिमिलरली परसेप्शन मतलब आप कैसा समझते, सुनते और देखते हो, दैट इज परसेप्शन. तो आई एम रिपीटिंग, while both are related to, both means phonetics and phonology are related to the production and perception processes of language sound. They differ in their approach and goals. दोनों अलग अलग approach है phonetics and phonology. Listen, phonetics is concerned with the physical properties of sound. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो इंटरनल, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है. ये एक तरह का हार्डवेयर है जहाँ पे हम माउस यूज़ करते हैं, मदरबोर्ड यूज़ करते हैं, कीबोर्ड यूज़ करते हैं, वो उस तरह का. कैसे आर्टिकुलेटरी, मतलब हमारे आर्टिकुलेटरी सिस्टम मैंने बताया था, दोनों लिप्स, दोनों टीथ रिज,
ये जो हमने ऑर्गन्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था, ये पार्ट्स जो होते हैं दैट इज़ आर्टिकुलेटरी, अकॉस्टिक जो आप वो करते हो, सुनते हो, दैट इज़ कॉल्ड अकॉस्टिक, एंड परसेप्चुअल जो आप अंडरस्टैंड करते हो, एंड एम एट साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल साउंड्स रिकॉर्डेड इन ह्यूमन लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज दो लैंग्वेज की बात नहीं करते, दे टॉक अबाउट यूनिवर्सल लैंग्वेज, एंड एम्स ऑफ फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी इज टू डिस्क्राइब एंड क्लासिफाई द साउंड्स, कि एक साउंड क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है, कभी दो लिप्स को टच करने से, कभी टिप ऑफ द टंग टचेस टू सॉफ्ट पैलेट, समटाइम हार्ड पैलेट, तो अलग अलग तरह के साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, है ना। और जो एक ह्यूमन बीइंग, एक हिंदू, इंग्लिश, मुस्लिम, इंडियन, फ्रेंच, ऐसा नहीं, एक ह्यूमन बीइंग जो सारे साउंड्स को प्रोड्यूस करता है, उस लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं तो दैट इज़ द स्टडी ऑफ फोनेटिक्स, जो फिज़िकल स्टडी करता है, जो ऊपरी तौर पे कौन कौन से पार्ट्स हमारे कान और ये और हमारा लंग्स और ये सब पार्टिसिपेट, इसकी स्टडी। तो मुझे लगता है नाउ यू आर गेटिंग योर आंसर दैट IPA symbols, International Phonetic Alphabet comes under this category, that is called, that's a part of phonetics, क्योंकि वहाँ पे पूरे IPA symbols means phoneme, उसी को phoneme कहते हैं। तो हम phoneme की जब स्टडी करते हैं तो कैसे प्रोड्यूस होती है, आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, हमने देखा ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, तो ऑल दीज द स्टडी ऑफ phonetics, because here we are talking about physical properties. Now come to the phonology. Phonology on the other hand is focused on how these sounds are organized. चलो साउंड तो बन गए, आपने कुकिंग की फॉर एग्जाम्पल, तो कुकिंग में सबसे पहले आपने रॉ मटेरियल लेकर आए आप, और फिर आपने देखा, आपने उसको थोड़ा थोड़ा बना के रख दिया। अब उसके बाद थाली का अरेंजमेंट, प्रेजेंटेशन, कैसे उसको गार्निश करोगे, ये समथिंग इज दैट इज़ कॉल्ड फोनोलॉजी, क्योंकि एक मटेरियल रेडी हो गया, दैट इज़ द पार्ट ऑफ phonetics. Now phonology. Phonology on the other hand is focused on how these sounds are organized in single language. कि अगर हिंदी बोल रहे हैं तो हमने कहा राम आम खाता है, तो पहले हमने सब्जेक्ट लिया, फिर ऑब्जेक्ट लिया, फिर वर्ब लिया। पर जब हम इंग्लिश का सेंटेंस बना रहे हैं तो हमने कहा राम ईट्स अ मैंगो, तो राम एंड देन वर्ब, राम इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देन वर्ब, एंड खाता है इज ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से जब हम ऑर्डर को चेंज करते हैं, दैट इज़ इंडिविजुअल लैंग्वेज। तो यहाँ वो यही कह रहे हैं कि फोनोलॉजी ऑन द अदर हैंड इज़ फोकस्ड ऑन हाउ दीज साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिंगल लैंग्वेजेस, हाउ दे कॉन्स्टिट्यूट देयर फोनोलॉजिकल इन्वेंटरी। ये जो एक लैंग्वेज में ये कैसे ऑर्गेनाइज होती है, एंड हाउ दे कॉन्स्टिट्यूट their phonological inventory through distinctive opposition, and how they relate to morphosyntax and semantics. अब ये कैसे, how they constitute their phonological inventory, how they constitute their phonological inventory, मतलब ये पूरा कैसे बनाते हैं, थ्रू डिस्टिंक्टिव ऑपोजिशन, मतलब आप हाउ दे कॉन्स्टिट्यूट, फ़ोन आ रहा है, डिस्टर्ब हो रही हूँ मैं बार बार, हाउ दे कॉन्स्टिट्यूट देयर फोनोलॉजिकल इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब एक तरह का स्टॉक जो होता है। तो हम कैसे करके सेंटेंसेस को बनाते हैं कि हम पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट क्या है, ये सारी स्टडी की उसका प्लेसिंग कैसे होती है, थ्रू डिस्टिंक्टिव ऑपोजिशन। कि भाई आपने अगर यहाँ ये रखा है तो ly जो है वो दैट इज़ एडवर्ब, द वर्ड विच एंड्स विथ ly, एंड दैट इज़ यूज फॉर वर्ब, तो वो उसकी पोजीशन अलग होगी। हाउ दे रिलेट टू मॉर्फोसिंटेक्स, मॉर्फो मतलब वर्ड, एंड सिंटेक्स मतलब ऑर्डर, ग्रामर, तो वर्ड एंड उसका ग्रामर, उसको मॉर्फोसिंटेक्स कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो हाउ दे रिलेट टू मॉर्फोसिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स, कि एक सेंटेंस पूरा बनाने में
उसमें जो वर्ड्स कौन से चॉइस ऑफ वर्ड्स अप्रोप्रिएट है कि नहीं, और फिर उसका वर्ड ऑर्डर ठीक है कि नहीं, और उसका मीनिंग ठीक है कि नहीं, जो हमने डिसएम्बिग्विटी एम्बिग्विटी पढ़ा कि भाई निकलने के बाद, बनाने के बाद सेंटेंस वो प्रॉपर मीनिंग जो आप कहना चाह रहे हैं वो हो रहा है कि नहीं, ये सारी स्टडी इज द पार्ट ऑफ फोनोलॉजी. तो दिस कोर्स एम्स एट इंट्रोड्यूसिंग द रीडर टू बोथ डिसिप्लिन्स फोकसिंग ऑन फॉलोइंग. ये वो बता रहा है कि हम नीचे क्या क्या बताने वाले. तो यहाँ पे मैं अभी इसको एंड करती हूँ. क्यों? क्योंकि द डिफरेंस बिटवीन योर क्वेश्चन व व्हाट द डिफरेंस बिटवीन फोनोलॉजी एंड फोनेटिक्स. तो फोनेटिक्स जो है वो दैट्स अ स्टडी ऑफ साउंड्स एंड कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, दैट इज़ द स्टडी ऑफ फोनेटिक्स. और फोनोलॉजी जब उसका वर्ड्स और वर्ड्स का अरेंजमेंट, ऑर्डर, और साथ में उसका अरेंजमेंट के बाद मीनिंग, प्रॉपर मीनिंग उस सेंटेंस का, दैट इज़ द स्टडी ऑफ फोनोलॉजी. तो मुझे लगता है क्लियर है, पर आप मुझे रिप्लाई करना जैसे ही आप मैं ये आप पढ़ोगे, सुन लोगे मेरा वीडियो, तो फिर आप उसको मुझे रिप्लाई करना. ठीक है, चलो, ओके, बाय.